Council of the Minister. Article 74. There shall be a Council of Minister plus Prime Minister to aid and advise to the President, and President shall in the exercise of his function act accordance with the advice of Council of Minister. President may require the Council of Minister to reconsider the advice, and President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. 44 amendment was saying, so this reconsideration after passing once more, President it is mandatory for the President to give his advice. Advice tendered by the Minister of the President shall not be inquired into any court, and it shall not be inquired in any court. The Prime Minister is appointed by the President, and the other ministers are appointed by the President on the advice of the PM. The total number of the ministers, including the PM in the Council of Ministers, shall not be the 15% of the total number of the member of the House. The 15% is the given. The total number of the ministers, including the Prime Minister, Council of Ministers, shall not be the 15%. The minister shall hold office during the pleasure of the President. President can remove the minister on the advice of Prime Minister. All the ministers are responsible to the House of People for the act, and any minister not abiding with the cabinet decision should be resigned. The Council of Ministers are collectively responsible to the House of People. So they are collectively responsible to the House of People. The President, it is given in Article 75. The President administered the oath of the office of secrecy, of the third schedule. Any minister who is not a member of either House of Parliament period in the 6 consecutive months shall be a minister, cease to be a minister. Within the 6 months, the Prime Minister must become a member of either House of Parliament. In either House of Parliament in 6 months, he should be a minister. The salary allowances of ministers specified in the 2nd schedule. So, Article 77. Article 77 is given conduct of the governor of the business. All the executive action of the Governor of India is expected to be taken in the name of the President. So all executive actions are taken in the name of the President. An order and the other instrument made by the executed name of the President. Validity of an order or instrument cannot be challenged. The President shall make the rules also. So convenient transaction of the business. For transaction and the business, he can make rules also. And for the allocation of the among the ministries and the businesses, Prime Minister has to communicate to the President. In the communication, it is 78, where the given the PM to communicate to the President. Upon the President call Prime Minister to furnish. If Prime Minister is called upon to furnish that information, President can require to Minister to submit the decision which has not yet been considered in the Council. All the decision of the Council of Ministers relating to the administration, all decision of the Council of Ministers relating to the proposal, and the information relating to the administration of the affair of the Union, and the information relating to the proposal of the legislation. (76) is given appointment duty of the Attorney General, audience of the court and Attorney General. The Attorney General of India is appointed by the President. A person shall have a qualification to appoint the judge of the Supreme Court to aid and advise the Governor of India upon the legal matters, and to discharge the function confirmed by the under the Constitution or any other law, time being force.
In the performance of his duty, Attorney General shall have the right to audience in any court. He can write to audience in any court. Audience in any court shall hold office during the pleasure of the President, and there was a pleasure of President, and shall receive such remuneration of the President may determine. In the performance of his duties, an Attorney General shall have a right to audience in any court. Duties of the Prime Minister. Prime Minister has to communicate to the President. He will communicate to the President all the decision of the Council of Ministers relating to the affairs of the Council of Ministers, all decision Council of relating to the proposals of legislation, and information relating to the administration of the affairs of the unions. So affairs of the union and information relating to the proposal of legislation. President can require a minister to submit his decision on any matter which has not yet been considered. So President will submit the decisions which not yet been ordered to the council. Now next one is the Parliament. Article 79. Parliament is consisting of the three: President, Council of the State and House of People. In the composition of the Council of the State, there is 238 plus 12, 250 members, and 12 members are nominated as a knowledge of literature, science, art and social science, and not more than 230 member from the 238 member of the state and UT. The representation of the Union Territory shall be chosen such manner in the Parliament may by law prescribed. Seats for representation of the State and Union Territory are allocated in accordance with the 4th schedule. Seats for representation as a 4th schedule. Composition of the House of People. Now composition of the House of People is 530 plus 20 plus 2, that is 552, and not more than 530 member will be from the direct election, and not more than 20 member from the UTs are chosen Parliament by law provide, and 2 member are nominated from the President as a Anglo-Indian, and after the 105 amendment, I think, so that clause was removed from this. Now Anglo-Indian is not chosen from that amendment. Readjustment after each census. Article 82. It is saying readjustment after census. So readjustment means upon the completion of each census, the allocation of the seats of the House of People state shall be readjusted, and division of the each state into the territorial constituency. So that is the census is 2026, and the allocation of the seats in the House of People state shall be readjusted on the basis of 1971 population, and the division of the each state into the territorial constituency will be readjusted on the basis of the 2001 census. So House of People, it will be in the 1991, and in the territorial constituencies or the each state, that will be the 2001. In the each state it is 2001, and in the House of People it is 1971 till 2026 84 amendment it is given, readjustment of the seats. Now Article 83, duration of the Council of the State. So Council of State or Rajya Sabha no subject to dissolution. It is not subject to dissolution, and 1/3 of the member retired every 2 years. And in the House of People, the time period is the 5 years for the date of the first meeting. Duration may be extended by the Parliament by law case of the emergency.
and Parliament by law can extend the period not exceeding a year, cannot be extended beyond a period of the 6 months after case of the proclamation. So cannot be extended period of the 6 months after the case ceased to be a proclamation. Qualification for the membership of the Parliament. He is a citizen of India, Article 84. If he is a citizen of India, if he is ceased to be a seat in a Council of State not less than the 30 years or 25 years of the age. He possesses such other qualification and may prescribe by behalf of under the Parliament. He hold any office of profit, unsound mind, undischarged, insolvent, disqualified under the law made by Parliament or disqualified under the anti-defection law of the 10th schedule. So he will never be qualified as a member in that all cases. And Article 85 is talking about the sessions of the Parliament. It is qualification now. It is a session. Session is President shall summon the House Parliament to meet such time, place and think fit. So President will going to summon the House, and the time between last sitting of the first session and the first sitting of the next session should not be exceed the 6 months. So last session of the the last sitting of the first session and the first sitting of the next session will not be exceed 6 months. The President may from time to time prorogue the House, other House, and dissolve the House also. He will dissolve the House also. The address of the President. Article 87. President address both the House of Parliament. To address both the House of Parliament. President address joint assembly in the first session and the first session after each general election. First session after each general election. Right of the Minister and Attorney General in the respect of the House. 88 में Attorney General का दे रखा है, and that was Minister of Attorney General have a right to speak. They can right to speak, and any joint sitting, either House or Committee of Parliament being a member, they take part in proceedings. They right to speak and also take part in proceedings, but no right to vote. They have not given the right to vote. Office of Parliament. Office of Parliament. Article 89. Vice President of India is the ex officio chairman of the Council of the State. The Council of State shall be chosen member of the Council of Deputy Chairman is also there. So Deputy Chairman will be chosen here in the Article 89. Okay, and the Article 90. Vacation of the resignation of the removal from the office of Deputy Chairman. So Article 19 में जो रिमूवल है या फिर वेकेशन है सीट्स का, किसका, डिप्टी चेयरमैन का. Shall be vacate his office, cease to be member of council, may be a time writing under the address to the chairman, and may be removed from his office resolution of the council passed by majority of then member of the council. So there will be a resolution, or he will give to the resignation to the council of the chairman of the council, or he will resign, or he will remove. Okay, so Article 91 is given the deputy chairman act as a chairman. Article 91, Deputy Chairman act as a chairman when the office of chairman is vacant. If the office of the chairman is vacant, then he will become a deputy chairman as a chairman. During any period when the vice president is acting president. If vice president acting president, in that case also he will be a chairman. Article 92, chairman of the deputy chairman cannot preside or vote while resolution of his removal is under consideration. If there is a removal of under consideration of the chairman and the deputy chairman, he cannot be going to be the preside the house. Okay. Now next is the speaker and deputy speaker. In Article 93, House of the People shall be choose a speaker and deputy speaker. Okay, speaker and deputy speaker. And vacation and resignation of removal of the officer, that was 19(4).
shall be vacate his office if he cease to be a member of the House of People, may at any time writing under the hand addresses if such member speaker to deputy speaker, if such member of the deputy speaker to the speaker, may be removed from his office by the resolution House of the People is majority of the member. Now Article 95, power of the deputy speaker. Article 95 is the power of the deputy speaker. Deputy speaker act as a speaker and the president may appoint the another person for the purpose of the absence of the deputy speaker. So deputy speaker act as a speaker, Article 95, and president may appoint another person for the purpose of the absence of the deputy speaker. If deputy speaker is absent, then president will call to the another person to go for act as a speaker. Article 96, the speaker or deputy speaker cannot preside while the resolution of removal is in consideration, and the speaker shall be take proceeding and is entitled to vote only in first instance, not in case of equality of vote. All the question at any sitting of the house shall be determined by the majority of the vote of member present and voting. So जितने भी decisions लिए जाते हैं they are taken by the majority of the house. They are taken by the majority of the house. The chairman or the speaker of the person acting as a shall not be vote in first instance. So first instance में ये vote नहीं देंगे, ठीक है, but can only be exercise casting vote. They will go to the casting vote and equality of the vote. Casting vote and the equality of the vote. Either House of Parliament have power to act irrespective of the vacancy of membership. 1/10 of the total member of the House is required to constitute a meeting of the other House of Parliament. So quorum is what is quorum? अगर किसी भी हाउस की मीटिंग करवानी है, quorum कितना चाहिएगा? 1/10 का चाहिए, ठीक है. And chairman of the speaker or a person acting as a can either adjourn the house, suspend the meeting until there is a quorum. So house suspend भी होगा, adjourn भी होगा, और until the quorum is completing. Now next one is disqualification of the member. Article 101, vacation of the seats. No person shall be member if both the House of Parliament, अगर वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर है, बोथ पार्लियामेंट एंड हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव का भी अगर वो मेंबर है, तो ही सीट बिकम वैकेंट इफ़ ही इज़ डिस्क्वालिफाइड एज ए आर्टिकल 102. इफ़ द मेंबर ऑफ रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द हैंड एड्रेस टू द चेयरमैन, अगर वो राइटिंग में दे रहा है अपनी बात को, एंड द मेंबर इज़ एब्सेंट फॉर 60 डेज़, अगर वो 60 दिन तक अगर हाउस में आया ही नहीं है 60 डेज़ तक, एंड विदाउट परमिशन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है. नाउ आर्टिकल 102, द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप इज़ गिवन इफ़ होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इफ़ अनसाउंड माइंड, इफ़ अनडिस्चार्ज द इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट है या अनडिस्चार्ज है, इफ़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, हैज़ वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप, अगर इसने वॉलंटरली सिटीजनशिप एक्वायर कर ली हो फॉरेन स्टेट की, ठीक है. इफ़ अंडर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजेंस अडेरेंस टू द फॉरेन स्टेट, अगर इसके अगेंस्ट कोई एलिगेशन लगी हुई है फॉरेन स्टेट में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाइड हो जाएगा. आर्टिकल 103, डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन इज ऑफ द मेंबर. सो प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेगा वही क्या हो जाएगा, फाइनल डिसीजन हो जाएगा, ठीक है. नाउ आर्टिकल प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, फिर ये प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन से भी एडवाइस ले सकता है. 104, पेनल्टी फॉर द सिटिंग एंड द वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 व्हेन नो क्वालिफाइड व्हेन डिसक्वालीफाइड. तो क्या करेंगे, पेनल्टीज़ लगाएंगे अगर वो डिसक्वालीफाइड है. तो मेकिंग ओथ एंड अफर्मेशन अंडर 99 में इसका कुछ ओथ एंड अफर्मेशन होगा, फिर इसको डिसक्वालीफाइड किया जाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रिविलेजेस. प्रिविलेजेस जो हैं, आर्टिकल 105, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, क्या दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, ठीक है. सो नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ एनी कोर्ट इज रेस्पेक्ट टू एनीथिंग सेट पार्लियामेंट और एनी कमिटी
for the vote given the parliament or any committee. Liable for the publication of the parliament any report, कुछ रिपोर्ट्स होंगी, पेपर्स होंगे और प्रोसीडिंग्स होंगी, ठीक है. रिपोर्ट्स, पेपर्स एंड प्रोसीडिंग इन द 105. तो प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट दिए गए हैं कि मतलब शैल बी स्पीच, मतलब वो हाउस में स्पीच कर सकता है, और लाइबल होगा प्रोसीडिंग में पार्ट लेने के लिए, लाइबल होगा पब्लिकेशंस के लिए, रिपोर्ट्स के लिए एंड पेपर्स के लिए, एंड पार्लियामेंट में कुछ कमिटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है. नाउ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसे चलता है हमें देखना है. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सो आर्टिकल 107 जो है, ठीक है, आर्टिकल 107 प्रोविज़न ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ ए पासिंग ए बिल, कोई भी बिल यहाँ पे पास किया गया, ठीक है. सो सब्जेक्ट टू प्रोविज़न ऑफ द आर्टिकल 109 एंड 117 बिल में भी ओरिजिनेट इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसको बिल दिया को रखा जाएगा. देन पेंडिंग इन द पार्लियामेंट शेल नॉट बी लैप्स बाय द रीज़न ऑफ प्रोरोगेशन. अगर ये पार्लियामेंट में पेंडिंग है तो ये लैप्स नहीं होगा कि भाई ये प्रोरोगेशन हो रहा है या कुछ. पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट विच इज़ नॉट बीन पास बाय द हाउस ऑफ पीपल शैल नॉट. अगर हाउस ऑफ स्टेट में पेंडिंग है तो वो भी लैप्स नहीं होगा, ठीक है, कि ये रिजॉल्व हो रहा है ऐसा कुछ कह के, ये भी पेंडिंग में लैप्स नहीं होगा. लैप्स ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, कब लैप्स होगा, जबकि ये हाउस ऑफ पीपल में होगा, ठीक है. तो फर्स्ट कब लैप्स होगा, द बिल इज़ पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल एंड द बिल इज़ ऑलरेडी पास बाय द हाउस ऑफ पीपल बट पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट में अगर पेंडिंग है तो वो बिल क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, ठीक है. अगर वो काउंसिल ऑफ पीपल से तो पास हो गया लेकिन स्टेट में अगर पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाता है. जब भी बिल लैप्स होगा उसके बाद में जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है. तो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट समन करता है, जॉइंट सिटिंग को कौन समन करता है, प्रेसिडेंट इसको समन करता है, ठीक है. सो द बिल इज़ पास बाय द वन हाउस बट रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस. एक हाउस ने इसको पास कर दिया, सेकंड ने इसको रिजेक्ट कर दिया. एंड द बिल इज़ पास बाय वन हाउस बट द अदर हाउस डिसएग्रीड. अगर कोई दूसरा हाउस इस पर डिसएग्रीड हो गया, या फिर द बिल इज़ पास बाय वन हाउस बट पास इन द अदर हाउस फॉर द मोर देन 6 मंथ. अगर 6 मंथ तक ये डिसएग्री ही रहे हैं, कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है. नथिंग इन दिस क्लोज शैल बी अप्लाई टू मनी बिल. मनी बिल के केस में कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है. और प्रेसिडेंट इंटेंड टू समनिंग ए जॉइंट सिटिंग नेदर हाउस शैल प्रोसीड फर्दर विद द बिल. नाउ स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू द मनी बिल. तो मनी बिल के सब्जेक्ट में स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है. फर्स्ट, द मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट में कभी भी मनी बिल नहीं लाया जाता है. मनी बिल पास बाय द हाउस ऑफ पीपल एंड सेंड टू द हाउस ऑफ द स्टेट for recommendation. Council of State shall return the bill for the House of People with the recommendation within the period of the 14 days from the receipt of the bill. House of People may either accept, reject or any of the recommendation of the Council of State. If a money bill is not returned to the House of People within the 14 days, it shall be deemed to have been passed by the both house in the original form. अगर 14 दिन के अंदर अंदर मनी बिल पास नहीं हुआ तो इसको पास मान लिया जाता है. मतलब अगर काउंसिल ऑफ स्टेट ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो ये 14 दिन तक ओनली रोक सकती है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकती, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल? सो मनी बिल इज़ लाइक इम्पोजिशन एंड अबोलिशन एंड रेमिशन एंड अल्टरेशन. कितने वर्ड है? इम्पोजिशन है, रेमिशन है, अल्टरेशन है और अबोलिशन है ऑफ एनी टैक्स, ठीक है. 4 वर्ड्स हैं. अल्टर करना, इम्पोजिशन करना, रेमिशन करना या फिर अबोलिशन करना, ठीक है. रेगुलेशन ऑफ द बोरोविंग ऑफ द मनी, गिविंग द गारंटी टू द मनी, एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेशन करना, ठीक है. कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, contingency fund of India and the public account of the India. Now appropriation of the money out of the consolidated fund of India, expenditure of the consolidated fund of India, receipt of the money like public account आता है और consolidated, एक तो public account होगा, एक consolidated fund of India होगा. Now the audit of the account is in the union of the state में इसको audit किया जाएगा. A bill must be deemed to be money bill reason only it provide for the imposition of the fines, for the demand of the payment fee, license fee,
तो अगर कोई इम्पोजिशन किया जा रहा है फाइन का, व्हाट इज इफ द इम्पोजिशन ऑफ द फाइन, इफ द डिमांड ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन, और इफ द प्रोविजन ऑफ द लोकल अथॉरिटी, लोकल पर्पस के लिए. So if any question arise whether a bill is money bill or not, the speaker will final that it is a money bill or not. And Article 111, a bill passed by the House of Parliament sent to the President for his assent, and President assent the bill in the first instant or return the bill. अगर मनी बिल है तो वो रिटर्न नहीं करेगा, अदर बिल है तो रिटर्न कर देगा. A bill returned by the President can be passed by the House without amendment, and pass the President for assent, the President shall not withhold his assent therefrom. Now proceeding of the financial matters. Annual financial statement, which is Article 1, and 2. Every financial year President lay annual financial statement for both the House of Parliament. इसमें क्या होता है, एस्टिमेट्स होते हैं. व्हाट काइंड ऑफ एस्टिमेट्स आर देयर? फर्स्ट इज द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. एक तो है चार्ज्ड और एक है मेड फ्रॉम. अब एक्सपेंडिचर चार्ज में आएगा एमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, salary allowances of the deputy chairman and the speaker, debt charge government, and salary allowances of the judges, and salary allowances of the CAG, and salary allowances of the High Court. Article 113, procedure in Parliament with respect to the estimates. Expenditure charge upon consolidated fund of India shall not be submitted to the vote on Parliament. इसमें क्या होगा, वोट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा. Shall be discussed, इसको डिस्कस तो किया जा सकता है बट इट विल नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट. अदर एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सबमिटेड टू द फॉर्म ऑफ डिमांड एंड ग्रांट्स, और इसको डिमांड प्लस ग्रांट्स की फॉर्म में रखा जाएगा. हाउस ऑफ द पीपल हैव पावर टू असेंट, रिफ्यूज द असेंट एनी डिमांड. House of People will assent, refuse or demand on to assent any demand subject to reduction specific period. No demand for grant shall be made except the recommendation of President. So demand of grant will be after the accept the recommendation of the President. जब तक President की ऑर्डर नहीं आएगी तब तक कोई भी डिमांड एज ए ग्रांट नहीं माना जाएगा. आर्टिकल 114 में है अप्रोप्रिएशन बिल. Appropriation bill is what? It is introduced in the appropriation of the fund from the consolidated fund of India, and bill cannot be amended to vary amount of alter destination of the grant. It vary the amount of any expenditure charged upon the consolidated fund of India. Article 115, it is supplementary addition and excess grant. Supplementary addition and excess grants. So that was in Article 115. President shall lay before the House of Parliament. And Article 116 is about the vote on account and vote on credit. Vote on account and vote on credit. So this is to make the grant in advance, to make the grant for meeting of the unexpected demand and for the indefinite period, and to make the exceptional grant. तो यहाँ पे पहला आएगा कि कितना एडवांस में आप पैसा ले रहे हो. देन ग्रांट फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड डिमांड एंड विच इज़ फ्रॉम नो पार्ट इन द करंट सर्विस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सो एक्सेप्शनल ग्रांट्स भी होंगे इसमें. नाउ नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 118. It is rule of procedure. Each House of Parliament may make the rules for conduct of the business. It is for the conduct of the business. Each House of Parliament make the rules for conduct of the business. President make the rules for conduct of the joint sitting. के लिए क्या बनाएगा? President rules बनाएगा. And head of the
both the house of parliament. Joint sitting of the two house of presided by the speaker. और ये कौन प्रिसाइड करता है? जॉइंट सिटिंग को स्पीकर प्रिसाइड करता है. नाउ आर्टिकल 120, बिजनेस ऑफ द हाउस शैल बी इन द हिंदी और इंग्लिश. Any member who cannot adequately express himself in Hindi and English can address the house in the mother tongue also. He can go to the mother tongue. 121, restriction on the discussion of the parliament. No discussion shall be take place parliament regarding the conduct of the judges of the high court और सुप्रीम कोर्ट. इनके कंडक्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं होता है. ठीक है. आर्टिकल 122, कोर्ट नॉट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट. टू वैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 122 में कोर्ट किसी भी प्रोसीडिंग पर इंक्वायर नहीं कर सकती है. द क्वेश्चन ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, नो ऑफिसर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी सब्जेक्टेड टू द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट. कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके अगेंस्ट कोई भी जुरिडिक्शन कोर्ट में नहीं चलेगी. शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुरिडिक्शन इन एनी कोर्ट. आर्टिकल 123, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ए ऑर्डिनेंस. प्रोमोलगेट ए ऑर्डिनेंस. ठीक है. ड्यूरिंग द रीसेस, अगर रीसेस हो रहा है तो ऑर्डिनेंस बनाएगा. व्हेन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट मे प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस एज ए सर्कमस्टेंसेस आर अपीयर टू रिक्वायर्ड, मस्ट लेट बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, cease to operate expiration of the 6 week and may be withdrawal of any time of the president. An ordinance of the promulgation under the article shall be make the act of a parliament. After it is passed, it will shall be same force of as a act of parliament and must be laid before house of parliament. Then expiration of the 6 week and 6 month तक इसको लगातार आप रीअसेंबली करोगे तब तक चलेगा. Then may be withdrawal at any time of president. President कभी भी चाहे तो इसको withdrawal कर सकता है. Next is the Supreme Court. The establishment of the Constitution of the Supreme Court. Supreme Court of India shall be the consistent with the Chief Justice, not more than the 7 judges. ये starting में था, अभी 34 I think judges हैं. Judges of the Supreme Court appointed by the President in the consultation of the judges of the Supreme Court and High Court of the state. Judges shall be hold office until the 6th year and the 65 year. Until the age of the 65 year. Okay, and the 6th year जो भी हो. Removal of the judges. A judge may be writing under his seal address to the President, resign कर सकता है. Chief Justice of India must be consult in the case of the appointment of the judges. ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप कंसल्ट करोगे. देन ए पर्सन इज ए क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और एटलीस्ट 5 ईयर तक इसने जज या फिर हाई कोर्ट में कम से कम 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में इसने काम किया हो, या फिर 10 साल तक वो क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो. ठीक है. ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ मिसबिहेवियर. इसको रिमूव कैसे करेंगे? अगर ये ग्राउंड क्या आया, मिसबिहेवियर का आ गया, या फिर वो इनकैपेसिटी का आ गया कि वो सक्षम नहीं है, इनकैपेसिटी. ठीक है. नाउ आर्टिकल 125, द सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ द इन द सेकेंड शेड्यूल में इसकी सैलरीज रखी गई है. एंड आर्टिकल 126 में एक्टिंग जज की तरह भी काम कर सकता है एज ए एक्टिंग जज. Chief Justice of India can appoint a judge with the consent of President and in consultation with the Chief Justice of High Court. 128, attendance of retired judge of sitting of Supreme Court. Chief Justice of India with the consent of President can require judge of Supreme Court so act as a judge of Supreme Court. So attendance of the retired judge of the sitting Supreme Court. Supreme Court to court of record होगा. 129 में क्या होगा? ये court of record की तरह काम करेगा. It has all the powers of fine, imprison for the contempt. Article 131 में original jurisdiction of the Supreme Court. Supreme Court has the original jurisdiction. अगर कोई dispute हो one or more state के बीच में between Government of India, any other state or the between 2 or more state. Article 131 A में दिया गया है कि exclusive jurisdiction of the Supreme Court है. क्या है? exclusive jurisdiction. Supreme Court exercise jurisdiction regard to the question of the constitutional validity. आर्टिकल 132 में दिया गया है अपीलेट जुरिडिक्शन के बारे में. क्या दिया गया है?
अपीलेट जुरिडिक्शन के बारे में दिया गया है 132 में। एंड ए केस ऑफ द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केस इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 133 में सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम जजमेंट डिक्री फाइनल ऑर्डर सिविल प्रोसीडिंग दैट शेल बी केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ का हो या फिर दैट ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट सेट टू बी द नीड ऑफ डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू द क्रिमिनल मैटर्स। ये तो हो गए सिविल मैटर्स के केस। अब आर्टिकल 134 में है क्रिमिनल मैटर्स। अगर कोई क्रिमिनल मैटर हो उसके रिलेटेड, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फाइनल ऑर्डर सेंटेंस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड हैज़ ए अपील रेंडर टू द एक्विटेड हैज़ ए विड्रॉल ऑफ ट्रायल एंड 134A इज़ द अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 136 में है स्पेशल लीव टू अपील द सुप्रीम कोर्ट। 136 में क्या है? स्पेशल लीव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी एक्सरसाइज स्पेशल लीव। 137 में रिव्यू द जजमेंट करना। 137 में क्या है? रिव्यू करना जजमेंट को, ठीक है। तो 136 में तो क्या था? स्पेशल लीव था, स्पेशल लीव देना। और 137 में क्या है? रिव्यू करना जजमेंट को, ठीक है। स्पेशल लीव किस में? 136 में। 137 में है रिव्यू करना जजमेंट को। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148 में एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की सैलरीज एंड अलाउंसेस से सेकेंड शेड्यूल से दी जाएंगी। रिमूवल जो होगा सिमिलर मैनर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर अपॉइंटमेंट्स। इसका फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होता है, मतलब री अपॉइंटमेंट जो है इसका नहीं होता है। नाउ ड्यूटीज़ एंड पावर्स जो हैं दैट इज़ गिवन इन आर्टिकल 149। यूनियन स्टेट एंड द यूटीज़ के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल डील विद द अकाउंट्स ऑफ यूनियन स्टेट एंड यूटी। आर्टिकल 150 में अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट कैप फॉर्म ऑफ द प्रेस्क्राइब प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ द केक की एडवाइस से ही वो रखेगा। एंड ऑडिट रिपोर्ट्स हैं आर्टिकल 151 में है। द रिपोर्ट ऑफ केक ऑन द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट वॉज द टर्न लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। The report of the cake is account of the state are submitted to the governor who is the laid down before the legislation of the state. Now governor के बारे में है next power. So article 153 में there shall be a governor of the each state. Governor of the each state होगा. The same person can be appointed as a governor for 2 or more states. 7 constitutional amendment आया था जिसमें ऐसा कहा गया था। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर आर्टिकल 1 इन द गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड इन द गवर्नर। 155 में अपॉइंटमेंट करता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। टर्म एंड ऑफिस 156 में दी गई है इसकी टर्म एंड ऑफिस। टर्म एंड ऑफिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर में रिजाइन हिज ऑफिस एड्रेसिंग टू द प्रेसिडेंट and hold the office for the 5 year on which is enter upon the office and until the successor enter upon the office or regardless expiration of his term. Article 157 में qualification है कि he should be a citizen of India and the 35 year of the age. Article 158 में दिया गया है हमें governor shall not be a member of either house of parliament. तो कैंडिडेचर के लिए मेंबर ऑफ द हाउस मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। Governor entitled to the emoluments as a second schedule and emoluments of the allowances are not diminished during his term. 160 में प्रेसिडेंट में डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ गवर्नर ड्यूरिंग द कॉन्टीजेंसी। कोई कॉन्टीजेंसी हो गई तो प्रेसिडेंट भी डिस्चार्ज कर सकता है आर्टिकल 160 के अंतर्गत। 161 में पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट एंड पार्डन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ग्रांट, पार्डन, रिप्राइव, डिस्पाइट, रिमिशन कहा गया है एंड सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट भी दिया गया है इसमें। Now next one is 163. 163 में क्या है? There shall be a council of minister to aid and advise to the governor. Council of minister चीफ मिनिस्टर होगा जो कि होगा एड, वो क्या करेगा? एड एंड एडवाइस देगा किसको? गवर्नर को। The validity of the governor each under the discretionary power cannot be questioned. Advice tendered by the minister to the governor cannot be inquired into in a court. Appointments: chief minister appointed by the governor and other minister appointed by the governor advice of the chief minister. Minister hold office during the pleasure of the governor. Total number of the ministers 15% होने चाहिए। ये 91 अमेंडमेंट आया था उसमें कहा गया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द
lower house, and if the minister is not member of the legislature state for 6 consecutive months, cease to be a minister, and the salary and allowances of the minister is specified in the second schedule. एडवोकेट जनरल, ये जो एडवोकेट जनरल है आर्टिकल 165 में है. अपॉइंटमेंट्स एंड अदर कंडीशन ऑफ एडवोकेट जनरल इज ए गवर्नर ऑफ द ईच स्टेट अपॉइंट पर्सन टू एडवोकेट जनरल. कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है. ठीक है, प्लेजर ऑफ गवर्नर. क्वालिफिकेशन एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट के बराबर होनी चाहिए. टू एडवाइज द गवर्नमेंट फॉर द लीगल मैटर्स में ये एडवाइस करता है. ठीक है, एंड लीगल ड्यूटीज़ हैं इसको भी ये फर्निश करता है. एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर एंड रिलीव हिज रेमुनरेशन एज ए गवर्नर में डिटरमाइन. जितनी भी रेमुनरेशन गवर्नर डिटरमाइन करता है वो इसे दी जाती है. अब है आर्टिकल 166. यहाँ पर है कि कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट. कंडक्ट ऑफ द स्टेट. ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट टेकन नेम ऑफ द गवर्नर. ठीक है, ऑर्डर एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड नेम ऑफ द गवर्नर. चीफ मिनिस्टर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नर. 167 में क्या है? सीएम फर्निश करता है इन्फॉर्मेशंस को एंड कम्युनिकेट करेगा, गवर्नर को एडवाइस देगा. एंड विथ नॉट येट बिन कंसीडर्ड, जो कि पहले से कंसीडर्ड ना की गई हो. सीएम अपॉन द कॉल, सो फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रपोजल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स. अब है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में. स्टेट लेजिस्लेचर मतलब 168 द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द स्टेट. गवर्नर होगा, एक असेंबली होगी और एक काउंसिल होगी. ठीक है. 169 अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ द काउंसिल. रिजोल्यूशन हैज़ बीन पास मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ असेंबली प्रेजेंट इन वोटिंग. 170 में कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. यहाँ पे क्या है? कंपोजिशन ऑफ द असेंबली है. ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 मेंबर ऑफ चूजन द डायरेक्ट इलेक्शन एंड 60 मेंबर चूजन द डायरेक्ट इलेक्शन. 500 plus 60 member chosen by the direct election. State are divided into territorial constituency in the maintained ratio between population. Territorial constituency shall be readjusted. So until the first census is the make in the 2026, the seats may be readjusted. 1971 का ही सेंसस यहाँ भी यूज़ लिया गया है. टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रीएडजस्टेड ऑन द 2001. ठीक है. कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो टोटल नंबर ऑफ द शेल नॉट बी एक्सीड 1/3 ऑफ द मेंबर. इसको हटा दिया जाता है 2 ईयर में. शेल नॉट बी नॉट केस ऑफ द लेस देन 40 होने चाहिए. अब यहाँ पे 1/3 ऑफ द इलेक्टोरल कंसिस्टिंग होते हैं जो कि म्यूनसिपैलिटी से होते हैं. 1/12 जो होते हैं ग्रेजुएट्स होते हैं. 1/12 जो होते हैं टीचर्स होते हैं. 1/3 जो होते हैं वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली से लिए जाते हैं. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल. और गवर्नर अपॉइंट करता है 12 मेंबर्स को साइंस, लिटरेचर, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल साइंस एंड आर्ट के लिए. आर्टिकल 172, इसमें ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट दी गई है. द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिजॉल्व. लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द 5 ईयर तक इसका ड्यूरेशन है. सो द ड्यूरेशन में बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ इन केस ऑफ इमरजेंसी. पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 year and cannot be extended beyond the period of 6 months. Cease to be a proclamation. Duration of the council. The legislative council shall not be subject to dissolution. 1/3 of the member expiration of the every 2 year में इसको डिज़ोल्व किया जाता है. द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. और इन केस ऑफ द सीट्स आर लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट 30 ईयर एज होनी चाहिए किसमें? काउंसिल में. और 25 ईयर फॉर द असेंबली में. He possesses such other qualification prescribed behalf of the law made by the parliament. 174 में सेशंस बताए गए हैं. तो गवर्नर शेल समन करता है दोनों हाउस को. द टाइम ऑफ जॉइंट सिटिंग होती नहीं है, स्टेट में नहीं होती, बट फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन और नेक्स्ट सेशन इन सब में ये पार्टिसिपेट करेगा. प्रोरोग करेगा और डिज़ोल्व भी कर सकता है असेंबली को. प्रोरोग करेगा दोनों हाउसेस को और डिज़ोल्व करेगा असेंबली को.
176 में गवर्नर एड्रेस करता है दोनों हाउसेस को, असेंबल करेगा एंड गवर्नर एड्रेस करेगा जॉइंट असेंबली को भी, लाइक फर्स्ट सेशन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द जनरल इलेक्शन। तो जॉइंट असेंबली होती है जिसमें ये कमेंसमेंट होता रहता है। 177 में राइट्स ऑफ द मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल बताया गया है, ठीक है, एडवोकेट जनरल के राइट्स हैं। तो यहाँ पर एनी जॉइंट सिटिंग दे टेक पार्ट प्रोसीडिंग ऑफ द एनी जॉइंट सिटिंग अदर हाउस एनी कमिटी ऑफ द बीइंग एज ए मेंबर। एडवोकेट जनरल इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, वो वोट नहीं करेगा, वो पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी बात को रख सकता है। लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट 178 में क्या है, द लेजिस्लेटिव असेंबली शेल चूज द स्पीकर, और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को ये चूज़ करते हैं। नाउ वेकेशन ऑफ द रेजिग्नेशन एंड द रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर डिप्टी स्पीकर 179 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वेकेट किया जा सकता है। सच मेंबर ऑफ द स्पीकर डिप्टी स्पीकर को वेकेट किया गया, ठीक है। नाउ पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर एंड अदर पर्सन टू परफॉर्म ड्यूटीज एज ए स्पीकर and the speaker and deputy speaker cannot be preside while resolution of removal of office in consideration। 182 में दिया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल शेल चूज द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, फिर चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे एंड पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन फॉर परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द हाउस एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन कैनॉट बी प्रिसाइड वाइल रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल इन द कंसिडरेशन। ये सब पहले जो बताया था सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल वैसा ही है। कंडक्ट ऑफ द बिजनेसेस आर्टिकल 189 में ऑल क्वेश्चन ऑफ एनी सिटिंग ऑफ द हाउस शेल बी डिटरमाइंड मेजॉरिटी ऑफ द वोट मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग चेयरमैन एंड स्पीकर पर्सन शेल एक्टिंग एज ए शेल नॉट बी वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस बट इन ए कास्टिंग वोट, मतलब इक्वालिटी होगी तब वो अपना वोट देंगे। अदर हाउस ऑफ लेजिस्लेशन हैव ए पावर टू एक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसी। कोरम जो होता है दैट इज़ द 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर एंड 10 मेंबर ऑफ द हाउस विच एवर इज़ ग्रेटर। चेयरमैन एंड स्पीकर और द पर्सन एक्टिंग एज सच एदर एडजॉर्न द हाउस सस्पेंड द मीटिंग अंटिल द कोरम इज़ फुलफिल्ड। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, वेकेशन ऑफ द सीट्स हो जाएगी, जैसे 190 के अंदर दिया गया डिसक्वालिफिकेशन, तो वेकेशन करना पड़ेगा सीट को। नो पर्सन शेल बी मेंबर अगर वो हाउस ऑफ मतलब कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर हो, ठीक है, और अगर वो दो से अधिक हाउसेस का क्या हो मेंबर हो। सीट बिकम वैकेंट इफ ही इज़ एड्रेस टू द चेयरमैन, को अगर वो एड्रेस कर दे रेजिग्नेशन, या फिर वो 60 डेज़ तक अगर आया ही नहीं हो, 60 डेज़ तक अगर वो वैकेंट रहा हो, ठीक है। सो डिसक्वालिफिकेशन 191 में कहा गया है अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर हो, अगर अनसाउंड माइंड का हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, अगर किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले ली हो, या फिर कोई एलिगेशन चल रहा हो, या फिर वो 10th शेड्यूल के अंदर इसको डिसक्वालीफाइड घोषित किया गया हो। 192 में कहा गया है कि डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर के कौन लेगा, गवर्नर लेगा, जो कि फाइनल डिसीजन होगा। गवर्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट कर सकता है। पेनल्टी ऑफ द सिटिंग एंड द वोटिंग बिफोर द मेकिंग ओथ एंड अफर्मेशन व्हेन द क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड, ओथ और अफर्मेशन होगा, पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज़ होगी, ठीक है, और वोटिंग वगैरह से रिलेटेड में भी पेनल्टी होगी अगर वो डिसक्वालीफाइड होता है तो। लेजिस्लेचर प्रोसीजर ऑफ द स्टेट, स्टेट में क्या प्रोसीजर होता है, आर्टिकल 196 में दिया गया है कि एक बिल भेजा जाएगा दोनों हाउसों के पास, फिर ये दोनों हाउस क्या करेंगे, नॉट लैप्स होगा तो इसका रीज़न बताएंगे कि क्यों नहीं लैप्स हो रहा है, और लैप्स हो रहा है तो भी बताएंगे। तो ए बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट नॉट लैप्स, वो लैप्स नहीं होता है। ए बिल पेंडिंग पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट बट पेंडिंग काउंसिल लैप्स होता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो यहाँ पर एक रिजेक्ट कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, 3 मंथ तक मतलब लैप्स हो सकता है बिल। पास द बिल इज अमेंडमेंट ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट एग्री, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में पास द बिल सेम और एनी सब्सिक्वेंट सेशन फॉर विदाउट सच अमेंडमेंट। नाउ इफ द बिल इज पास बाय द सेकेंड टाइम द लेजिस्लेटिव असेंबली ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेज देगी वो बिल,
द बिल इज़ रिजेक्टेड, बिल को या तो ये रिजेक्ट करेंगे, मोर देन 1 मंथ तक ये एलेप्स कर सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास 1 मंथ होता है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पहले 3 मंथ था। फिर अभी यहाँ पर जो बिल है यहाँ पर 1 मंथ है। अगर कोई बिल पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली और ये गया काउंसिल के पास तो 3 मंथ। अगर ये बिल पास बाय द सेकेंड टाइम, अगर वो सेकेंड टाइम पास हो रहा है तो 1 मंथ का टाइम होता है। ठीक है, द बिल इज़ पास विद द अमेंडमेंट विद द लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट एग्री, अगर वो एग्री नहीं है तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, द बिल इज़ पास विद द अमेंडमेंट, अगर वो एग्री नहीं है तो अमेंडमेंट के साथ पास हो जाता है। ए बिल इज़ डीम्ड टू पास बाय द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट विद और विदाउट अमेंडमेंट के भी पास होता है। नाउ स्पेशल प्रोसीजर रेस्पेक्ट टू द मनी बिल, मनी बिल जो होता है, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इसको कभी लाया नहीं जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज़ के अंदर इसको रिटर्न करना होता है। ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सेप्ट द रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, अगर वो एक्सेप्ट करती है रिजेक्ट करती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट रिटर्न द बिल, ये फिर भी पास माना जाता है। डीम टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब है असेंट टू द बिल। आर्टिकल 200 में कहा गया है कि ए बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट इज सेंड टू द गवर्नर, बिल किसको भेजा जाएगा, गवर्नर को भेजा जाएगा। गवर्नर असेंट टू द बिल इन द फर्स्ट इंस्टेंस में क्या करेगा, वो असेंट देगा। फिर ये मनी बिल होगा तो वो असेंट नहीं देगा। मनी बिल रिटर्न द बिल, इफ़ नॉट मनी बिल, मनी बिल को रिटर्न नहीं करता है। रिजर्व द बिल, रिजर्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ए बिल रिटर्न द गवर्नर कैन बी पास बाय द हाउस विदाउट अमेंडमेंट, so pass in the presented to the governor for assent, governor shall not withhold assent therefrom, governor shall reserve the bill for consideration of president if it is become a law so derogate power of high court, अगर ये हाई कोर्ट की पावर को डेरोगेट कर रहा है तो एक बिल को वो रिजर्व रख सकता है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, और ये रिटर्न भी कर सकता है बिल को। ठीक है, और सो पास प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर असेंट, गवर्नर शैल नॉट विड्रॉल असेंट देयरफॉर। आर्टिकल 201 में बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन, 201 में क्या है, कंसिडरेशन के लिए रखा जाता है। मैंने बिल इज रिजर्व फॉर द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट में असेंट देगा डायरेक्ट गवर्नर टू द रिटर्न द बिल फॉर द हाउस, या तो वो असेंट देगा या आप डायरेक्ट कर देगा गवर्नर को कि आप रिटर्न कर दो हाउस को ये बिल। द रिटर्न बिल इज़ रिकन्सिडर्ड द हाउस विद इन द 6 मंथ में इसको रिकन्सिडर करना होता है। सो इट इज़ बिल अगेन पास बाय द हाउस विद द विदाउट अमेंडमेंट, इट शैल बी प्रेसिडेंट अगेन टू द प्रेसिडेंट हिज कंसिडरेशन, फिर ये दोबारा भी कंसिडरेशन के लिए रख सकता है। तो आर्टिकल 201 में क्या है, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रखा जाता है। अब है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, आर्टिकल 202 में है एवरी फाइनेंशियल ईयर गवर्नर ले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द एस्टीमेट, जितनी भी एस्टीमेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, एक तो होंगे चार्ज्ड और एक होंगे क्या प्रपोज्ड किया गया है इन फ्यूचर। ठीक है, फिर द इमोल्यूमेंट्स अलावेंसेज ऑफ गवर्नर होगा, सैलरी ऑफ अलावेंसेज, डेप्ट ऑफ द गवर्नर, सैलरी अलावेंसेज ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड द अवार्ड्स एंड द कोर्ट आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल्स वगैरह, मतलब ये सारे जो पैसे हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं। फिर है 203 में है कि प्रोसीजर लेजिस्लेशन विद रिस्पेक्ट टू द एस्टीमेट्स, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अदर एक्सपेंडिचर चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सबमिटेड टू द डिमांड फॉर ग्रांट्स, हाउस ऑफ द पीपल हैज़ द असेंट देगा या फिर असेंट ऑफ द डिमांड सब्जेक्ट टू द रिडक्शन ऑफ द अमाउंट। नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। 204 में क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल है। 204 में क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल है। बिल कैन नॉट बी अमेंडेड इट वेरी द अमाउंट द अल्टरेशन ऑफ द ग्रांट्स टू वेरी द अमाउंट एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें अप्रोप्रिएशन बिल आ गया। और 205 में है सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट, एक्सेस सप्लीमेंट्री एंड एडिशनल ग्रांट्स दिया गया है। ठीक है, तो गवर्नर शेल ले बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द एक्सेस ग्रांट। और 206 में क्या दिया गया है, टू मेक द ग्रांट इन एडवांस, टू मेक द ग्रांट्स फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड डिमांड जो होते हैं, अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए 206 में दिया गया है। एंड टू मेक द एक्सेप्शनल ग्रांट विथ फॉर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। रूल ऑफ द प्रोसीजर 208 में क्या दिया गया है, रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट में मेक द रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। 210 में है बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी ट्रांसलेटेड ऑफिशियल लैंग्वेज, या तो हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी।
एनी मेंबर ऑफ द हु कैन नॉट बी एडिकेटली एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन हिंदी इंग्लिश शैल बी द इन द मदर टंग में वो अपनी बात रखेगा। 211 में है कि रेस्ट्रिक्शन डिस्कशन लेजिस्लेटिव स्टेट, नो डिस्कशन शैल बी टेक प्लेस इन द स्टेट रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के जजेस से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बोली जाएगी, कोई भी कंडक्ट इनके अगेंस्ट नहीं चलेगा। 212 में क्या दिया गया है, द वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग इन द रिलेशन कैन नॉट बी क्वेश्चन ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। 212 में मतलब आप हाउस के खिलाफ कोई भी बात कोर्ट में नहीं बोल सकते हो। नो ऑफिसर ऑफ मेंबर ऑफ रिलेशन शैल बी सब्जेक्टेड टू द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। अब है गवर्नर के पास भी पावर्स होती हैं। क्या पावर्स होती है? 213 के अंदर ऑर्डिनेंस की पावर होती है गवर्नर के पास। पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, द हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट नॉट सेशन, अगर सेशन में ना हो तो गवर्नर प्रोमलगेट कर सकता है। एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर आर्टिकल शैल बी द इफेक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव एक्ट, जैसे कि लेजिस्लेचर का कोई एक्ट पारित होता है वैसे ही इसकी पावर होती है। मस्ट लेट बिफोर द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट में इसको रखा जाएगा। देन सीज टू ऑपरेट द एक्सपायरेशन ऑफ द 6 वीक ऑफ द रीअसेंबली ऑफ द हाउस, सीज टू ऑपरेट बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, सो मे बी विड्रॉल एट एनी टाइम बाय द, और इसको किसी भी समय गवर्नर विड्रॉल कर सकता है। 6 वीक से 6 मंथ तक चलता है। और एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड जो भी रिजोल्यूशन पास होगा डिसअप्रूविंग द पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये इतना ऑपरेट रहता है। अब है हाई कोर्ट्स, ये कल करेंगे।